پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ موسم سرد ہونے کی وجہ سے موٹر ویز پر دھند کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس آن رکھنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز شاہ زیب شہزاد سے۔ جی شاہ زیب بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور اور اس کے نواحی علاقوں میں شدید دھند ہے۔ دھند اپنا راج دکھانا شروع کر چکی ہے، تو حد نگاہ جو ہے بعض مقامات پہ 50 سے 60 فٹ تک ہے۔ تو موٹر وے پولیس کی جانب سے بھی حفاظت کے لیے شہریوں کی موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ جس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ موٹر وے M4 کو شیر شاہ سے فیصل آباد تک، موٹر وے M3 سمندری سے درخانہ تک، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے دھند کے باعث مکمل طور پہ بند کر دی گئی ہے۔ ہیلپ لائن 130 کا شہری استعمال کر کے معلومات لے سکتے ہیں، اور شہریوں کے لیے ہدایات ہیں کہ شہری فوگ لائٹس کا استعمال کرے اور دوسری گاڑیوں سے ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھے تاکہ افسوسناک واقعات سے بچا جا سکے۔ جی بہت شکریہ شاہ زیب۔ برائلر انڈوں کی روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان۔ مرغی کا گوشت 18 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 463 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام میں بھی 12 روپے فی کلو اضافہ۔ زندہ برائلر ہول سیل 307 پر چون ریٹ 319 روپے کلو مقرر، جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 359 روپے فی درجن برقرار ہے۔ انڈوں کی پیٹی 10,620 روپے میں دستیاب۔ مارکیٹ میں فی درجن انڈے 400 روپے تک فروخت ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر بتائیے گا۔ آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری ناشنامے میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ برائلر گزشتہ روز بھی مہنگا کیا گیا تھا، آج مزید 18 روپے فی کلو تک مہنگا کیا گیا۔ مرغی کا گوشت مارکیٹ میں جو ہے وہ 463 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، اور زندہ برائلر کی قیمت میں 12 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 307 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 319 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ انڈوں کی قیمتیں سرکاری ناشناموں میں 359 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,650 روپے کی مقرر کی گئی ہے، تاہم مارکیٹ میں انڈے جو ہیں وہ 400 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں، جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرد موسم میں انڈوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے انڈوں کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے شہری 35 روپے تک فی انڈا جو ہے وہ خریدنے پر مجبور ہیں، اور انڈے جو کہ بنیادی غذائی ضرورت ہے وہ بھی اب شہریوں کی قوت خرید سے دور ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر میں تجاوزات کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل، 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن آج سے شروع ہوگا۔ شہر کی 6 بڑی شاہراہوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن۔ تجاوزات کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں مکمل، 20 دسمبر سے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع ہوگا۔ شادرہ موڑ سے امامیہ کالونی پھاٹک تک تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ مال روڈ اسمبلی چوک تا انارکلی چوک بھی آپریشن ہوگا۔ رائے منڈ سے بابو صابو اور عبدالستاریدی روڈ تک تجاوزات ہٹائی جائیں گی۔ فیروز پور روڈ تک کینچی احمد صدو تک تجاوزات ختم کی جائیں گی۔ کینال روڈ تا ہربنسپورہ اور علامہ اقبال روڈ تک بھی آپریشن ہوگا۔ چبورجی سے لے کر یتیم خانہ چوک تک تجاوزات کا صفایا کیا جائے گا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن 5 تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈی ایس پیز کی زیر نگرانی ہوگا۔ آپریشن میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے 700 سے زائد ریگولیشن اہلکار حصہ لیں گے۔ پولیس، ریسکیو، ایل ڈی اے، LWMC اور پارکنگ کمپنی کے اہلکار بھی موجود ہوں گے۔ ڈی سی لاہور اور ایڈمنسٹریٹر رافیہ حیدر نے کہا ہے کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن 20 دسمبر کو شروع ہوگا۔ لوگ رضاکارانہ طور پر از خود تجاوزات ہٹا لیں۔ تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ جہاں ہمارے میجر روڈ نیٹ ورکس ہیں، میجر کمرشل ایریاز جہاں پہ تجاوزات کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس میں پکی اور موویبل دونوں کے اوپر ہم لوگ ایکٹیویٹی کریں گے۔ تاجر برادری کے ساتھ ہم لوگ پراپر میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے AC صاحبان اور SP صاحبان نے پراپر ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، اور ان کی طرف سے بھی شورٹی ہے کہ وہ اس کے اندر ہمارا ساتھ دیں گے۔ 20 دسمبر سے ہم انشاءاللہ اس پہ بھرپور طریقے سے کارروائی سٹارٹ کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر رافیہ حیدر نے مزید کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا۔
LDA अनगिनत मसाइल का शिकार, ड्राइवर्स की कमी और ख़राब मशीनरी की वजह से इन्फोर्समेंट विंग की इस्तादाद कार महदूद होकर रह गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन के हुक्म पर सवालिया निशान लग गया। LDA शहर में ऑपरेशंस के लिए कई मसाइल से दो चार। इन्फोर्समेंट विंग को ड्राइवर्स की कमी और ख़राब मशीनरी का सामना, शहर और गिरदोनवा में गैर कानूनी तामीरात में आए रोज इजाफा, LDA अफसरान की मिलीभगत से कार्रवाई नहीं की जाती। निगरान वज़ीर आला पंजाब के 19 दिसंबर तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन के हुक्म पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। LDA की शोबा इन्फोर्समेंट के पास पहले 18 गैंगमैन थे, तबादलों की वजह से सिर्फ 3 गैंगमैन रह गए। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए एक्सकवेटर ड्राइवर भी नहीं, 3 एक्सकवेटर चलाने के लिए सिर्फ एक ऑपरेटर मौजूद है। तजावुज़ात का सामान लोड करने के लिए 5 ट्रक और 2 ड्राइवर हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने इन्फोर्समेंट विंग की इस्तादाद कार बढ़ाने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। आम इंतख़ाबात 2024 की तैयारियां अरूज पर। रिटर्निंग अफसरान ने सुबह इलेक्शन ऑफिस से अपने अपने हल्के की फहरिस्तें हासिल कर लीं। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में 24 निकाती नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के नोटिस बोर्ड पर हर हलके के रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्तें चिस्पा कर दी गईं। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार अपने अपने हलके के रिटर्निंग अफसरान से कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। 24 निकाती एजेंडे में दर्ज है कि उम्मीदवार पंजाब का वोटर मेंबर होना चाहिए, उम्मीदवार 25 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरता हो, तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा पंजाब का वोटर मेंबर हो, उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के लिए अलग से अकाउंट खुलवाएगा, उम्मीदवार सूबाई नशिस्त के लिए 20,000 और कौमी असम्बली के लिए 30,000 रुपये नाकाबिले वापसी जमा करवाएगा। उम्मीदवार अपने और अपने बीवी बच्चों के नाम असासों की तफसीलात जमा करवाएगा। उम्मीदवार 3 साल की टैक्स रिटर्न भी जमा करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए 8 फरवरी का दिन मुकर्रर कर रखा है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। नवाज शरीफ का कौम को मसाइल से निकालने का ऐलान, हमारी पॉलिसियों के नताइज बेहतर आए थे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले दिल और नीयत साफ करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। हमने अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, 4 साल तक डॉलर को 104 रुपए तक रखा। 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली भी आ रही थी, लोड शेडिंग भी ख़त्म हो चुकी थी, ऑयल पेट्रोल बहुत सस्ता था और रुपया मजबूत था। पाकिस्तान में CPEC आ रहा था, मुल्क एक एटमी क़ुव्वत बन चुका था और दिफाई लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था, इक़्तिसादी लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था, सियासी लिहाज से भी पाकिस्तान मजबूत था और 6.2% हमारी ग्रोथ रेट थी। महंगाई का नामो निशान तक नहीं था, ना आटा महंगा था, ना चीनी महंगी थी, ना बिजली महंगी थी, ना गैस महंगी थी, ना दालें महंगी थी, ना गोश्त महंगा था। सब गरीबों के घर भी माशाल्लाह आबाद थे और बच्चे भी स्कूल जाते थे और घर में अपना रोज़गार भी था। लाखों लोग रोज़गार हासिल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। हर साल करोड़ों गुर्बत की लकीर से बाहर निकल रहे थे। तो मुल्क तो एक तरह का अल्हम्दुलिल्लाह भाग रहा था, आगे दौड़ रहा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कहा जाता है कि अदालत में इंसाफ के लिए आया जाता है। इतने बरसों के बाद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई टाइगर, और मैं ये चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ। लाहौर हाईकोर्ट में आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जाता है कि अदालत में इंसाफ के लिए आया जाता है और इतने बरस बाद कायदे अवाम को इंसाफ दिया जाएगा। तमाम जजेस का शुक्रगुजार हूं कि सदर जरदारी का रेफरेंस जो 12 साल पहले भेजा गया था, आज उनका हियरिंग्स चल रहे हैं और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला इतने सालों बाद
कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, जब तक हम मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत करने का फैसला नहीं करेंगे तब तक हम अपनी आवाम के लिए बेहतरी नहीं ला सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, यहाँ कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई टाइगर, और मैं ये चीजें खत्म करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी फैसल टाउन में पीपी रहनुमा नवीद चौधरी की रिहाइशगाह पहुँचे और उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। पीटीआई एक्टिविस्ट खदीजा शाह की एफआईए में मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एफआईए को खदीजा शाह के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी अमर अयूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील से मुतालिक दरख्वास्त पर फ्रीकैंट से रिपोर्ट तलब कर ली। खदीजा शाह की एफआईए में मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी के खिलाफ मुकदमा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने खदीजा शाह की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील समीर खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खदीजा शाह को जमानत मिलने के बाद फिर किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी बदनीयती की बुनियाद पर शुरू की है। एफआईए को खदीजा शाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई शिकायत भी मौसूल नहीं हुई। अदालत ने एफआईए को तादीबी कार्रवाई से रोकते हुए समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी अमर अयूब के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के हसूल का मामला। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि बतौर पार्टी जनरल सेक्रेटरी आम इंतखाबात में हिस्सा लेना है। कागजात नामजदगी में अपने मुतालिक तफसील बताना जरूरी है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इदारे मुकदमात या जारी तहकीकात की तफसीलात फराहम नहीं कर रहे। उमर अयूब की सज़ा पर अदालत ने फ्रीकैन से कल रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। माफिया बेलगाम सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। लहसुन 850, अदरक 750, प्याज 200, टमाटर 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। शिमला मिर्च 220, मटर 200, करेले 180, आलू 100 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, अंगूर 580, सेब 380, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है उसमें करेले 4 रुपए महंगे करके 92 रुपए सरकारी रेट इसमें मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 180 से 200 रुपए फी किलो तक करेले की फरोख्त की जा रही है। 3 रुपए महंगा करके 45 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बंद गोभी 7 रुपए महंगी करके 92 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 5 रुपए महंगी करके 160 रुपए सरकारी रेट इसमें, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। इसी तरह फलों के सरकारी नरखनामों में 2 फल जो है आज महंगे किए गए। जिन फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें जो फल महंगे हुए उनमें किन्नू 10 रुपए महंगे करके 125 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन ये सिर्फ सरकारी नरखनामों तक महदूद है क्योंकि मार्केट में 280 रुपए फी दर्जन तक किन्नू की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह अंगूर जो है आज दूसरे रोज भी महंगे किए गए और आज 5 रुपए इजाफे के बाद 365 रुपए सरकारी रिलीज में अंगूर की कीमत है, लेकिन मार्केट में 580 से 600 रुपए फी किलो तक अंगूर फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों मार्केट में फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने सर उठा लिया है। कुदरती गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत के बाइस एलपीजी की तलब बढ़ गई है। एलपीजी माफिया भी सरगर्म। शहर में ओगरा रेट पर कहीं एलपीजी दस्तयाब नहीं है। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान ने आ लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत आम होने लगी। शहरी मुतबादिल ईंधन एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर। एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का सिलसिला भी जारी है। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा ने रवा माह एलपीजी की कीमत 255 रुपए फी किलो मुकर्रर की। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। हुकूमत एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग का नोटिस ले। मजबूरी है की करिए, इतों आग भरा के जाइदी है ते महंगी इन्नी गैस है। माड़े बंदे वास्ते बहुत परेशानी का हाल होया और बंदा गुजारा की या बंदा गैस ही पुआवे या फिर बच्चों ही पाले। सारा दिन मेहनत मुशक्कत करने के बाद 400-500 रुपए अपने घर लेकर जाते हैं बड़ी मुश्किल से। उसमें हम क्या करें, क्या खाएं और क्या कमाएं। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर ने गैस की किल्लत के खदशे का भी इजहार कर दिया। उनका कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे से रवा माह एलपीजी लाने वाले 2 बहरी जहाजों की पाकिस्तान आमद मनसूख कर दी गई। दोनों जहाज श्रीलंका भेज दिए गए हैं।
पंजाब हुकूमत का कुवैत को हाई प्रोटीन चारा बरामद करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। लाहौर के 6 मसरूफ़ तरीन चौकों पर प्रोटेक्टेड यूटर्न भी बनाए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर में प्रोटेक्टेड यूटर्न बनाने के लिए 19 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई, जबकि बाबू साबू टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की मंजूरी भी दी गई है। हैवी ट्रैफिक को बराह रास्त M2 मोटरवे पर रवा करने का इत्तफाक किया गया है। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि हाई प्रोटीन चारे की पैदावार बढ़ाने के लिए सरगोदा रिसर्च सेंटर को फंक्शनल किया जाएगा। केनाल रोड अंडरपासिस पर तामीराती काम में ताख़ीर। दौरे के दौरान DG LGA का इजहार बरहमी। मोहम्मद अली रंधावा ने शादरा चौक कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड का दौरा भी किया। कमिश्नर और DG LDA ने तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आलसूब रावीबरी तोसी मंसूबे शाहदरा चौक और कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे समेत मुख्तलिफ अंडरपासिस का दौरा किया। कमिश्नर ने कैनाल रोड अंडरपासिस में काम की सुस्त रवि का नोटिस लिया। बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के दौरे के दौरान दोनों पैकेजेस पर रात की शिफ्ट में जारी कामों का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पैकेज 1 का 41% जबकि पैकेज 2 का 24.5% काम मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह शाहदरा चौक के अतराफ जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने PIC अस्पताल के मुख्तलिफ सेक्शंस में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ईरानी पेट्रोल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स हुकाम ने टैंकर मांगा मंडी के करीब 40,000 लीटर ईरानी पेट्रोल से भरा ट्रॉलर पकड़ लिया है। ईरानी पेट्रोल लाहौर के पेट्रोल पंपों पर फरोख्त के लिए कोयटा से लाया जा रहा था। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने ईरानी पेट्रोल से भरे ट्रॉलर को दफ्तर मुंतकिल कर दिया। ईरानी पेट्रोल के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। ईरानी पेट्रोल लाहौर के पेट्रोल पंपों पर फरोख्त के लिए कोयटा से लाया जा रहा था। इससे कबल भी कस्टम्स हुकाम 35 से ज़ायद स्मगल शुदा ऑयल टैंकर्स पकड़ चुका है। एडिशनल डायरेक्टर रिजवान बशीर ने टीम को खुसूसी शाबाश दी है। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी है। तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने नए किराएनामा अवेजा कर दिए हैं। मुसाफिरों ने किरायों में मज़ीद कमी का मुतालबा भी किया है। तो आपको खबर दे रहे हैं, पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी है। तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने नए किराएनामे अवेजा कर दिए हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर इंटरसिटी किरायों में कमी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी। कोयटा का किराया 5,300 से कम करके 4,800 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 100 रुपए कमी के बाद 650 रुपए वसूल किया जा रहा है। रावलपिंडी का किराया 1250 रुपए मुकर्रर। मर्दान का किराया 2,000 और पेशावर के लिए किराया 2,200 रुपए है। कराची का किराया 5,000 रुपए लिया जा रहा है। बाजोड़ का किराया 2,500 रुपए वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किरायों में कमी कर दी, जबकि मुसाफिरों ने नए किरायों पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। जैसे शहर डीजल कम हो रहा है, इसी तरह किरायों में कमी भी हो रही है। जब भी अपना किराया कम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर आता है, DPO साहब आते हैं, खुद चेक, वो देखो किरायानामे लगे हुए, वो खुद चेक करके जाते हैं। सरगोदा से लाहौर ट्रैवल किया, अब लाहौर से सरगोदा कर रहा हूँ। पहले 750 था, अब 700 कराया है, कमी हुई है 50%। तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने नए किराएनामे अवेजा कर दिए हैं। रीजनल कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी का ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब का दौरा। कंसल्टेंट इंसदाद मंशियात मुहिम से जुल्फ़िकार हुसैन ने लाहौर शहर में मंशियात के बढ़ते रुझान, तालीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ जारी आगाही मुहिम और इलाज मुआवजे की सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के गड़ी शाह ऑफिस में दौरा के मौका पर ANF पंजाब के सरबराह ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने कहा कि ANF लाहौर में मनशियात के आदी मरीजों की बहाली के लिए हॉस्पिटल का आगाज कर रही है। मनशियात के खिलाफ वालिदैन और असातिज़ा को अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए मनशियात के खिलाफ बेपनाह काम कर रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं तो मेरा हमेशा ये रहा है कि टीचर को भी बिठाएं, पेरेंट्स भी इनकरेज करें, उनको भी बुलाएं। अच्छा, जो सिक्योरिटी गार्ड है, सुपरवाइज़र है, उनको भी बिठाएं। मतलब हर ऐसा नहीं है कि वो एक ख़ास तबके को और एक सोसाइटी हमसे बात करे और उसके बाद कॉलेज में पता भी ना हो।
तो मैंने अपनी टीम से भी कहा है कि जब एक प्रोग्राम करते हैं तो एक डेडिकेटेडली उससे होमवर्क करके हर डिपार्टमेंट से थोड़े थोड़े लोग हों ताकि वो हमारा मैसेज तब तक पहुँचे। कंसल्टेंट इंसदाद मनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन ने कहा कि मनशियात का मसला इंतहाई अहम है। नौजवानों को नशे की लत से बचाएंगे। तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ मुहिम के मसबन बताए जा रहे हैं। में पंजाब गवर्नमेंट से फोकल पर्सन तैनात करवाए तालीमी इदारों में। हमने सर गुटखा, ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, जूस पे तालीमी इदारों पर पाबंदी लगाई। उसके बाद सर हमने स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस का नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे पे बहुत अदारों का प्रेशर है कि हमें स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस बनाए, लेकिन हमारे एसओपी हैं कि हम अपने एसओपी में रह के, ये नहीं कि हमने उस पर बोर्ड लगा दिया, हम फॉलो अप प्रोग्राम करते हैं, रैंडमली विजिट करते हैं, बच्चों की सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट के सिलसिले में विदाउट एनी सर क्या कहते हैं बेनिफिट। सरबराह ANF के दौरे के मौका पर प्रोग्राम ऑफिसर सैयद मोहसिन, डॉक्टर शुएब जफर, बैरिस्टर सुलेमान असलम समेत दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़।